So hello guys, this is I think a series which I am going to start, and this series is mostly about how to earn a certification for Azure Data Engineer Associate. Okay, so if you are such a like IT professional who is working on data engineering domain, and if you want to earn this certification, which is a cloud certification in the Microsoft Azure domain, then you can opt for the course which is Azure Data Engineer Associate. Okay, so once you will go to this Azure Data Engineer Associate, you will get this Microsoft certified Azure Data Engineer Associate. Okay, so once you will click this, you will get to know that exam DP 203 is replacing exams 200 and DP 201. Okay, and DP 200 and DP 201 will retire on June 30 to 2021. So what basically is DP 200 and DP 201? So DP 200 and DP 201, these are actually a unique code which Microsoft uses to distinguish each and every course name. So basically DP 200 and DP 201, these both examination codes which contains defined exam for DP 200 and DP 201, both needs to be, I mean, you need to give both the exams for both the like for DP 200 and DP 201. If you will qualify both the exams, then only you can earn the certification for Azure Data Engineer Associate. Otherwise, uh, if you won't qualify, you won't be getting this. There is also one thing which is DP203, which is actually in the beta version. So in this case, if you only appear for this exam DP203, then also you can earn this certification, right? So you don't need to appear for both DP200 and DP201. Single alone this will handle the certification for that, right? So, what does this say? A candidate for the Azure Data Engineer Associate certification should have subject matter expertise in integrating, transforming, and consolidating data from various structured and unstructured data system into structures that are suitable for building analytical solutions. So, mostly, why this degree is important, right? Why this examination is important, and what are the background of the IT professionals that are really acquired for this certification degree? So basically, what does that IT professional do? So they basically integrate the data from different databases, like different heterogeneous databases. They collect the data from that, integrate that, and if there is some transformation required, they do the transformation, and according to the business needs, they uh, extract the data. Like first, what will they do? They will fetch the data. They will do some transformation according to the business requirement what is there, and then they will pass on the data to the analytics team. What they will do, they will process those datas into their dashboards. So those data will be appearing on the dashboard in a very friendlier manner, like in a bar graph, pie chart, so that the management teams who want to know the trends of their business, they can easily get to know about that. So for that, a data engineer is required to process those data, and so that like after processing, business management guys can work on those data to understand their business trends. So like that way it goes. So responsibilities for this role include helping stakeholders understand the data through exploration, building and maintaining secure and compliant data processing pipelines by using different tools and techniques. This professional uses various Azure data services and languages to store and produce cleansed and enhanced data sets for analysis, right? So we are doing analysis, हमें analysis करना है डेटा पे, एंड उस डेटा पे एनालिसिस करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? उस डेटा को क्लीन करना,
इसको मैं एक बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, जो भी अभी तक मैंने बताया इसको बहुत सिंपल में बताना है कि लाइक कोई भी मैनेजमेंट, अगर मान के चलो कि आप कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, और आपके डायरेक्टर जो कि एक मैनेजमेंट डोमेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपको बोला, एक सिंपल सा टास्क दिया कि तुम्हें मान के चलो क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइपरवाइज़र क्या होता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपरवाइज़र क्या होता है, ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग में लोड बैलेंसर क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या होता है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको क्या बोलेंगे कि आप लाइब्रेरी में जाओ और एक्सप्लोर करो। सो व्हाट यू गोना डू, आप लाइब्रेरी में जाओगे, आपको इतना पता है लाइक यू आर अ इंजीनियर एंड यू वेंट टू अ लाइब्रेरी, सो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, राइट। लेकिन आपको कौन कौन से बुक्स पकड़ने हैं, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर क्वेश्चन पूछा और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको वैसे फील्ड में जानी पड़ेगी लाइब्रेरी में, वैसे शेल्फ में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो दोनों बुक्स अवेलेबल है, सो दैट आप उस बुक को ओपन करोगे और व्हाट इज़ हाइपरवाइजर या फिर व्हाट इज़ लोड बैलेंसर, ये आपको मिलेगा उसमें, राइट। तो आप वो दोनों बुक्स को ही पिक करोगे और उसी शेल्फ से पिक करोगे। सो लाइक दैट डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, उनको अगर किसी मैनेजमेंट से आई कोई रिक्वायरमेंट कि आपको समथिंग आपको बिजनेस के लिए करना है, तो उनको क्या करना है ना, पर्टिकुलर उसी डेटाबेस में जाके उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा को फेच करना है, वॉट एवर डेटा उनको बिजनेस के लिए चाहिए वैसे डेटा को हमको लाना है। बट हम वैसे ही डेटा सिर्फ उनको नहीं भेज सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत सालों का डेटा है और जो एनालिसिस के लिए हमें डेटा देना है, शायद उसमें कुछ क्लीन करने की ज़रूरत पड़े, डेटा मे बी इन अ वेरी रॉ फॉर्मेट, ठीक है, बहुत से अलग अलग फॉर्मेट में डेटा हो सकते हैं, बट टू फीड इनटू द सिस्टम हमें उसे एक कॉमन फॉर्मेट में लानी पड़ेगी। एंड फॉर दैट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, क्लीन करना एंड देन लोड करना, एक कॉमन डेटाबेस में लोड भी करते हैं हम। तो एक जगह से निकाल के उसको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरी जगह पे डालते हैं, जहाँ पे डालते हैं, जो जहाँ पे डेटा को रखते हैं क्लीन करने के बाद, दैट इज़ एक्चुअली अ डेटा वेयर हाउस। और उस डेटा वेयर हाउस में रखने के बाद जो हमारी नेक्स्ट टीम होती है, डाउन स्ट्रीम की टीम, वो हमारे डेटा वेयर हाउस के डीबी से डेटा को फेच करके उसे लोड करती है टू अ वेबसाइट वे जहाँ पे रिपोर्टिंग का काम किया जा सके, ठीक है। सो इस सर्टिफिकेशन के लिए कैंडिडेट फॉर दिस सर्टिफिकेशन मस्ट हैव सॉलिड नॉलेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो डेटा के प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या होते हैं कि लाइक आप डेटाबेस पे हिट कर रहे हो, देन यू नीड टू नो व्हाट इज़ एसक्यूएल, ठीक है। और पाइथन ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ होता है, राइट, पाइथन का बहुत सारा यूज़ होता है, लाइक आप एक रैपर्स बना सकते हो पाइथन से जो कि ड्राइव करेगा सारी ऑटोमेशन को बैकग्राउंड में। और स्केला भी यूज़ होता है, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड ये पैरेलल प्रोसेसिंग की क्यों ज़रूरत है, लाइक आप हिस्ट्री के डेटा पे आपको अगर काम करनी है, मान के चलो कि आपको 10 साल के ट्रेंड्स निकालने हैं, ऑब्वियसली आपका डेटाबेस में 15-20 साल के डेटा होंगे, आपको लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड्स निकालने हैं, 10 ईयर के डेटा पे आपको खेलना है। तो अगर आप उस 10 साल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, देन डीबी को आपको बहुत उस पर अगर आप क्वेरी करोगे, देन इट विल बी बिकम वेरी लाइक हैवी फॉर द डीबी टू गिव यू द डेटा इन फ्यू टाइम, लाइक कुछ मिली सेकेंड्स में देने के लिए उनको बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, देयर विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग उन पे रन होगी। एंड फॉर दैट वी नीड पैरेलल प्रोसेसिंग। सो एक एम्प का कॉन्सेप्ट होता है हमारे टेरा डेटा वर्टिका में, एक एम्प की कॉन्सेप्ट होती है वो, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रोसेसर। सो वहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग करती है, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअली एमपीपी आर्किटेक्चर होता है उनका, जिसके थ्रू वो आपको डेटा अवेलेबल करती है विद इन बहुत कम टाइम में, राइट। सो वो कम टाइम में आपको इतना अच्छा थ्रूपुट देना, दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स। सो राइट नाउ आपको इतना आई I मीन पता चल गया होगा कि लाइक डेटा इंजीनियर एसोसिएट क्यों ज़रूरी है और हम क्यों करते हैं। तो इसकी सर्टिफिकेशन के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। तो DP200 और DP201 इन दोनों को आप अगर आप क्रैक करोगे, देन ओनली यू विल अर्न द सर्टिफिकेशन। एंड ये 200 की प्राइसिंग कितनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ।
सो फॉर DP200, इफ आप क्लिक करोगे तो कैंडिडेट्स फॉर द एग्जाम आर माइक्रोसॉफ्ट हु कोलैबोरेट विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो अगर आप इसकी प्राइस इंडिया के लिए देखोगे तो अप्रॉक्स इंडिया में आई थिंक 4800 लगती है जस्ट फॉर DP200, राइट। और अगर आप DP201 का देखोगे, सो अगर आप DP201 का देखोगे इट विल बी ऑल्सो सेम। इसकी भी प्राइसिंग अगर आप देखोगे, एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो दोनों के, तो ये दोनों मिला के आपको 9600 रुपीज़ पड़ेंगे, विच इज़ क्लोज टू 10,000 रुपीज़। और इस 10,000 रुपीज़ देने के बाद, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पियर्सन व्यू, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से कंपनीज हैं जो अपने प्लेटफॉर्म देते हैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए, राइट। तो उनके थ्रू आपको ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक करनी है, देन ओनली यू विल अर्न दिस सर्टिफिकेशन, राइट। तो आप यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्केड्यूल का। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आप कैसे डेटा इंजीनियर एसोसिएट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप मान के चलो आपको DP200 से पहले स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे DP200, तो यहाँ पे दो तरह के प्रिपेयर करने के तरीके होते हैं। या तो आप इंस्ट्रक्टर लेड लोगे, यहाँ पे आपको पैसे लगेंगे, राइट। एक इंस्ट्रक्टर आपको दे दिया जाएगा, प्रोविज़न किया जाएगा, एंड आपको थ्रू इंस्ट्रक्टर पढ़ना है, देन इट विल बी लाइक आपको पे करनी पड़ेगी। बट ऑनलाइन इज़ अ फ्री, और इसमें काफ़ी मॉड्यूल्स हैं, आपको एक एक करके क्लियर करने पड़ेंगे, राइट। तो फॉर DP200 आपको कितने हो गए? एज्योर फॉर डेटा इंजीनियर, स्टोर डेटा इन एज्योर, वर्क विथ रिलेशनल डेटा इन एज्योर, work with NoSQL data in Azure Cosmos DB, which is very important actually for the examination point of view. फिर large scale data processing with Azure Data Lake Storage Gen 2, and then implement a data streaming solution with Azure Streaming Analytics, implement a data warehouse with Azure Synapse Analytics, and data engineering with Azure Databricks. So these are the topics for DP200. तो अभी के नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीन मॉड्यूल को कवर करूँगा, विच विल बी एज्योर फॉर डेटा इंजीनियर, ठीक है। सो इसको करने के लिए आपके प्री रिक्विजिट ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती है, बट अगर आपने DP900 की सर्टिफिकेशन की है, देन इट विल बी रियली अ गुड थिंग फॉर यू। और अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हो देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट, इतनी ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आपको देखनी है मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप जस्ट लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा, विच विल बी ऑल अबाउट द एज्योर फॉर द डेटा इंजीनियर, एंड आई विल ट्राई टू कवर 3 मॉड्यूल्स इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, सो दैट आपको भी समझ में आएगा। और अगर आपको ये सारे मॉड्यूल्स समझ में अगर आते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे और सारे मॉड्यूल्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं, तो आप इसके एग्ज़ाम्स ज़रूर दो, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू to perform any processing in the cloud domain, right? So thanks for this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।